Pressing down again and again. Hmm. So, was there any homework, guys? In the main book or the practice book? Hmm. Okay. I should have assigned some homework in the practice book as well, maybe. Because, okay, did you guys work on your understanding of the difference between the present simple and the present continuous? Very important. I think I would start with number 4. क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं लोग? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? Go to page number 62 in the practice book. Do I look a little darker? My skin color? Do I look a little darker? Because I've been walking in the sun. Earlier I was always at home, and nowadays I'm doing the campaigning for the school. So I'm in the streets as well for a couple of hours every day in the sun. So I'm a little nervous, maybe my skin tone will get darker. I mean, there's nothing wrong with dark color, but you want to be at your natural color, right? Natural shade. What's she doing? Exercise 4, everyone. Page number 62 in the practice book. Look at the pictures. Complete the sentences about what the people are doing. Look at the pictures, everyone. Something is happening. Something is happening. कुछ हो रहा है. Somebody is doing something. कोई कुछ कर रहा है. Somebody is doing something. Look at these pictures and write sentences about what the people are doing. So in the first picture, what do you realize? Azhan beta, I'm trying to focus on you as well. क्या हो रहा है? क्या कर रही है? हिंदी में बोलेंगे स्पेगेटी खा रही है. इंग्लिश. इनाया इज 7, बट उसको अच्छे से पता है कैसे ये सेंटेंस को बोलना है. कल वो खूब बातें कर रही थी आयत से. Yeah, she's here. Yeah, she was in a good mood yesterday. In a very good mood. Please come in. Please come in. Come, run, because we have only one chair. Come on, stop. Yep, 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 yep. Yeah, good. Yes. All right, Inaya, you are the winner. Okay, Ayat, come here. Come next to your enemy. Come. Sit with your enemy. Come. Okay, okay, fine. She doesn't want to sit with her enemy. So, Inaya, are you in the same good mood today like yesterday? All right, then. Open your book. We are on page number 62 in the practice book. The thin book is the practice book, Seti. All right. Good. Yes, that's the book. Page number 62. Good. How quickly she got to page number 62. And I have seen my grown-up students feeling so uncomfortable, so confused about, getting to a page number I want them to get to. Okay, sweetie, but one more thing. Leave the other book here. Leave the other book here. Hold only one book in your hand. Okay, yeah, leave the other book on the chair. Yeah, the other book. All right, fine. Put it in the bag. Good. Now, take a look at the picture, sweetie. Number 1. What is the girl doing? She is eating a spaghetti. Number 2, what is happening?
He is driving a sports car. Number 3, they are watching football and they are shouting. Right. Can you see their hands, their mouths? They're shouting as well. Number 4, he is reading the newspaper. Number 5, she is washing her and you are watching her. Shame, shame, shame. All right. Number 6, they are drinking coffee, they're having coffee, no problems. Okay. And they're talking to each other. Can you see? And they're laughing. Okay. Number 2, complete the questions about. एक तो हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट. क्वेश्चन करने के लिए समझ जाओ थीम क्या है भाई. बी वर्ब चला जाएगा सब्जेक्ट के. बन गया क्वेश्चन. स्पेगेटी आंसर है. सवाल है ये क्या खा रही है. व्हाट इज शी ईटिंग. इज कहां शी के पहले. व्हाट इज शी ईटिंग क्या खा रही है. नंबर 2, ए स्पोर्ट्स कार क्या चला रहा है वो. व्हाट इज ही ड्राइविंग. व्हाट इज ही ड्राइविंग ए स्पोर्ट्स कार. 3, फुटबॉल. What are they watching? What are they watching? Number 4, the newspaper. What is he reading? What is he reading? Number 5, her hair. Does चाहिए मैं does चाहिए नहीं चाहिए does. B verb आगे आएगा. What is she washing? What is she washing? Does तो चाहिए ही नहीं है ना. वो B verb जो था वो आगे आ जाएगा. What is she washing? क्या धो रही हैं. Her hair. Number 6, what are they drinking? Coffee. They are drinking coffee. Now negative sentences. आसान. बी वर्ब में नॉट लगा दो नेगेटिव हो जाते हैं. Number 1, she isn't eating ice cream. Negative sentence easy. She isn't eating ice cream. 2, he isn't driving a van. 3, they aren't watching cartoons. 4, he isn't reading a book. 5, she isn't washing her clothes. She's washing her hair. 6, they aren't drinking orange juice. They are drinking coffee. वो लोग ऑरेंज जूस नहीं पी रहे हैं कॉफी पी रहे हैं. They aren't drinking orange juice. They are drinking coffee. ये बहुत मुश्किल एक्सरसाइज रहा. Not at all. Nothing can be easier than this. Make a sentence about अभी क्या हो रहा है कौन क्या कर रहा है इस रूम में और कौन क्या नहीं कर रहा है. पहले पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन बाद में कर लेंगे. हाँ. आई एम स्पीकिंग. ऑलराइट. Inaya is thinking. She is not thinking. She is listening to me. Yes. और क्या हो रहा है कौन क्या कर रहा है. पॉजिटिव नेगेटिव कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है. मेक स्टेटमेंट्स. आई एम टीचिंग. आई एम टीचिंग इंग्लिश. You are not playing, but you are still happy. We are listening to. Okay, you're listening to me. That's right. Got it? This is present continuous. Confusion है अभी भी. कौन क्या कर रहा है. राइट. कौन क्या नहीं कर रहा. नेगेटिव स्टेटमेंट. मुदस्सिर के बारे में एक सेंटेंस बोलोगे तुम सदाकत.
अपनी सारी सदाकत यूज करो, एक सेंटेंस बोलो। मुदस्सर क्या कर रहा है, मुदस्सर क्या नहीं कर रहा है। देखो मुदस्सर को बताओ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हाँ, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बोलो। यू कौन? मुदस्सर यू है। तुम किससे बात कर रहे हो? एक्सरसाइज 5, प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस। प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस। Complete the pairs of sentences using the verb once in the present simple and once in the present continuous. Do it silently, everybody. सदाकत। मोहन जा रहा है, इंग्लिश। मोहन इज गोइंग। क्या बोलेंगे? मोहन इज, मतलब मोहन जा रहा है। मेरी माँ चिल्ला रही है। माई मदर इज शाउटिंग। मेरे पापा अखबार पढ़ रहे हैं। माई फादर इज रीडिंग द न्यूज पेपर। मम्मी टीवी देख रही है। मम्मा माई मदर। फिर वो नहीं कर पाया। फिर से ट्राई कर ले बेटा, आसान उसको करेक्ट कर दे। मेरी माँ टीवी देख रही है। एक वर्ड वर्ड छूट रहा बेटा, वो इंपॉर्टेंट है बेटा, ओके। बोलो सदाकत। मेरी माँ टीवी देख रही है। छोड़ दिया फिर से। फिर से। हाँ, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ अपने आप में। हम्म। सर आप पढ़ा रहे हैं। वेरी गुड। आ जाओ तुम भी पिक्चर में। यस। सुशांत, तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर लाइंग। यू आर लाइंग। ओके। मैं नहा रहा हूं। हाँ हाँ। आई एम हैविंग अ बाथ। आई एम हैविंग अ बाथ। आई एम हैविंग अ बाथ। चलो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग। आई एम डूइंग प्रैक्टिस। आई एम प्रैक्टिसिंग। राहुल सो रहा है। फिर से। अभी इतना सारा प्रैक्टिस कर, अभी दिमाग आया। समझ में आया क्या जरूरी है। मैं गलती कर रहा हूँ। मैं गलती कर रहा हूँ।
आई एम मेकिंग अ, तुम गलती कर रहे हो, यू आर मेकिंग, हम लोग गलती कर रहे हैं, वो लोग गलती कर रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहा है, नो बॉडी इज, सब लोग गलती कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज मेकिंग अ मिस्टेक, लेकिन जारा गलती नहीं कर रही है, जारा इज नॉट मेकिंग अ मिस्टेक। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई, सदाकत बताएगा। जब भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलेंगे कि ये कर रहा है वो कर रहा है, इसमें इंग्लिश बोलते हैं, इसमें किन दो बातों का ख्याल रखना है बताओ, देखते हैं क्या बात कर रहा है। कोई इस तरह के सेंटेंसेस जितना भी प्रैक्टिस करवाए मैंने तुमसे, इसमें किन दो बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वो तो ठीक है हिंदी में, इंग्लिश में किस बात का ख्याल रखना जरूरी है, ऐसे ही सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोले। हाँ बोलो। इज एम आर बोलना है कि नहीं बोलना है, बोलना है। और क्या बोलना जरूरी है, आई एन जी लगाना जरूरी है। तो यही दोनों बातें बोल देते हैं सर, इज एम आर बोलना भी जरूरी है और आई एन जी लगाना भी। बस हो गया, यही दो बातों से सेंटेंस बन गया। देखो तबरेज एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे बोलेंगे, तबरेज, फिर सर जो अभी बोले उसको रिपीट करो, उसको अप्लाई करो। तबरेज इज, पहले इज एम आर लगाएंगे, गा लिया, तबरेज इज, आगे क्या बोल देंगे, एक्सरसाइजिंग, ही इज डूइंग द एक्सरसाइजेज। पल्ले पड़ा, मेरे पापा ट्रक चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, अभी सामने मेरे ट्रक चला रहे हैं, ट्रक, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर नहीं है, बट ही इज नॉट ए ट्रक ड्राइवर, ही इज ड्राइविंग a truck but he's not a truck driver. What's funny? बहुत है इतना, मैं ठेला चला नहीं चलाता हूँ लेकिन चला लूंगा, right? I mean, if you know how to drive a car, you can drive a truck. It's another thing that you will hit somebody if you go far. You will not be able to control it very well. But होता है, चला रहे हैं तो क्या, हाँ लेकिन वो ट्रक ड्राइवर नहीं है। मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। However, I'm not a geography teacher. However, I'm not a geography teacher. Done? समझ में आ गया? पूछो, आपकी मम्मी क्या बना रही हैं, क्या पका रही हैं, क्या बना रही हैं। What is your mother cooking? ठीक है, What is your mother cooking? बस, आपके पापा क्या देख रहे हैं टीवी पे? What is your father watching on TV? What is your father watching on TV? क्या खा रहे हो तुम, तुम क्या खा रहे हो? यस, व्हाट, खा रहे हो मैंने कहा, अभी भी कंफ्यूजन रह गया, तुरंत एक सेकंड में। ऐसे ऐसे लोग अपनी पत्नी को एक सेकंड में तलाक दे देंगे, ठीक है, इतना प्यार प्यार वाला बात बोलेंगे, ठीक है, और जरा सी कोई बात, भाग तू निकल, तू मेरी वाइफ नहीं। अब भी इतना अच्छे से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अपना बना रहा था, और उसमें ये भी देख रहा था कि इज एम आर बोलना जरूरी है और आईएनजी, ये दोनों इंपॉर्टेंट रूल्स बने।
लेकिन 1 सेकंड में इसने कहा भाड़ में जाओ रूल्स, हमको नहीं मतलब। लल्लू लाल, नया नाम रख इसका सदाकत से। क्या नाम है इसका आज से? लल्लू लाल। तू लल्लू लाल है, 1 सेकंड में चेंज। अरे तुम क्या बोल रहे हो, कैसे बोलेंगे? व्हाट आर यू सेइंग? क्यों रो रहे हो यार? व्हाई आर यू क्राइंग? मुश्किल है अभी भी। दो बातें इंपॉर्टेंट थी, कौन सी? दोहरा दो तो मुझे खुशी होगी। दो बातें कौन सी इंपॉर्टेंट थी? और वर्ब में आईएनजी, ये दोनों इंपॉर्टेंट। बस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यू, यही दोनों बातें का ख्याल रहे। ठीक है। कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। कुछ बॉयज। अरे नहीं आ रहा है कुछ काम तो बोलो, कुछ बॉयज चले। अरे कम से कम सेंस तो बना, हिंदी इंग्लिश में सेंस तो बन रहा है। हाँ भाई। हाँ, सम बॉयज। फिर भूल जाएगा, फिर इसका दिमाग नहीं पकड़ रहा है, कह रहे क्या दो जरूरी चीज है। ये हिंदी में बोल के पढ़ा है मैंने इसको, देखो। ये गिफ्ट है ऐसे, इसलिए ऐसे ही लड़कों के साथ काम करने को हमको मिलता है। ठीक है। ये देखिए, इतना हम अच्छा, ये आपको अगर नहीं पता होता, मान लो आपको पता था, तो जिस तरीके से मैंने ये बातें क्लियर करी है, अब इसको मुश्किल होनी चाहिए चार बोलने के बाद पांचवा में। चार बोलने के बाद पांचवा में ये फंसता है, इसका मतलब इसका दिमाग क्या करता है? ब्लैंक हो जाता है। देखा हुआ रास्ता में खो जाता है। नए रास्ते में खो जाए कोई बड़ी बात नहीं, देखे हुए रास्ते में जिसपे 4 बार गया उसी में कहता है किधर जाना है। हाँ जी। कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तुम बॉयज, देखो खा गया ना, तुम बॉयज प्लेइंग हो गया। और इजमार बोलना कि बोला था तुमने कि बोलना जरूरी है, लेकिन बोलना जरूरी है खाली एक रूल में बोला, बाकी बोलना नहीं है तुम्हें। क्या बोला तुमने? मुझे लगा। क्यों ड्रॉप किया? जब रूल बनना था कि इजमार बोलना जरूरी है तो उसको खाए क्यों? एक्सप्लेन करो। जब तुम्हें पता ही है कि इजमार बोलना है तो फिर खाए क्यों उसको? इजमार को छोड़ क्यों दिया, ड्रॉप क्यों किया? उससे क्या लेना देना इस बात का? जब हमने रूल बनाया था कि इज एम आर और आईएनजी जरूरी है, रूल बन गया, तो फिर इसका क्या लेना देना कि कुछ बोले कि सारे लड़के खेल रहे हैं, कोई नहीं खेल रहा है, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? इज एम आर में से किसी की तो जरूरत पड़ेगी ना, कि तीनों में से किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर रूल क्यों बनाए थे कि दो बातें इंपॉर्टेंट है? फिर तो हम बोलते एक ही बात इंपॉर्टेंट है, आईएनजी लगाना। दो बातें इंपॉर्टेंट है, इज एम आर होना और आईएनजी लगाना। तो तुम्हारा दिमाग कब इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि दोनों बातें जरूरी हैं? तभी ये सेंटेंसेस सही हो रहे हैं। कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर से, इज। इज किसके साथ लगाते हैं? कितने बचपन से अब तक कितने पैसे खर्च करे होंगे स्कूल जाने में? तो माँ बाप ने कितने खर्च किए होंगे आज के स्कूल जाने के लिए? महीने का कितना फीस है तुम्हारे स्कूल का? कितना था? कम बॉय की। ठीक है, हम आपको ट्राउट कर रहे हैं जो आप हमें यार बता रही हैं। जो बात है उस पर रही है ना, उसको इस और आर नहीं पता चलता है। और यहाँ रह के भी नहीं पता चलता है। बात करिए, इस जगह पे रह के उसको नहीं पता, इतने दिन से आ रहा है यहाँ पे ना, इसको ये नहीं पता है एज और आर कहाँ लगता है। बेटा आके बैठ जाते हो जैसे ससुराल आए हो, है ना? ऐसे ही फीलिंग रखते हैं अंदर में, कि अब आए हैं हम, हमारी खातिरदारी की जाए।
और ये ना सिखाते सारे इधर आर तुम्हें नहीं पता है। हाँ। और सम बॉयज के साथ बेटा चौथा बनवा देते हैं फिर। आई के साथ एम, यू के साथ आर, सम बॉयज के साथ। क्यों? 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 वही तो सर पहले इज था। कभी जानने की ख्वाहिश हो तो हवेली पे आ जाना। ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इतनी प्रैक्टिस दे दी बच्चे को, मुझे लगता है काफी है। आर यू डन? लेट्स सी। नंबर वन, she works in St. Mary's Hospital. She works in St. Mary's Hospital. Two, she is working hard because she has exams next week. Three, listen to Sonia. What language is she speaking? अरे सुनना कौन सा लैंग्वेज बोल रही देखो ना। Listen to Sonia! Exclamation mark. What language is she speaking? Four. How many languages does she speak? बोलती है। कितने languages बोलती है वो? How many languages does she speak? कोई बात नहीं सदाकत, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम लगे हो। ठीक है। अभी जितनी मिली चीज है बेटा, इज सिंगुलर के साथ है और आर प्लूरल के साथ। सम बॉयज मतलब एक से ज्यादा हो गया ना, तो आर। गॉट इट? खाली यू और आई की बात मत रखो, तो है ही चीज। इसके अलावा याद रखना, आर इज यूज विद प्लूरल एंड इज यूज विद सिंगुलर। How many languages does she speak? Number five, everybody. I am reading a very good book at the moment. Six. Do you read in bed? इट मीन्स सोने से पहले पढ़ाई करते हो? कुछ पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई करना गलत बात होगा। पढ़ते हो। डू यू रीड इन बेड मतलब पढ़ते हो, दोनों में फर्क बेटा। पढ़ना मतलब कुछ भी पढ़ सकते हो, एनीथिंग। बट पढ़ाई करना मतलब सिलेबस, कोर्स, स्टडीज। ओके। तो पढ़ना एंड पढ़ाई करना आर डिफरेंट थिंग। ठीक हो, पढ़ते हैं कि पढ़ाई करते हैं? अखबार को पढ़ते हैं कि पढ़ाई करते हैं? और पढ़ाई करना इज वेरी डिफरेंट, राइट? तो डू यू रीड इन बेड? क्या आप सोने से पहले कुछ पढ़ते हैं? डू यू रीड इन बेड? Yeah, I always did it earlier before I got my smartphone. Before I got a smartphone, I always read in bed every night. It was a routine. I would go to bed, hold a book, read a few pages, and then sleep. It was my routine. And then one bad day, I got a mobile phone, and then mobile was in my hand and the book was on the side. And slowly, the book is now on the shelf, and I am always with my phone at night. My life became absolutely, I would say I'm disgusted by this change. I hate this change. Why did I change? Why did I get the phone? I feel so bad about it. Or even if I got the phone, it was all right. I mean, as long as I use the phone in a good way. But every night playing this game, playing that game, made my health suffer because I didn't sleep enough. Since lockdown, particularly, this phone thing became a real problem. Last night, I was supposed to sleep about 10:30, and until 2, I was playing Ludo. I was bored. I was just, it has become some sort of addiction, I think, when I feel that I don't need to get up early. Today, school was closed because we are conducting exams there. So the exams are alternate day. So today was a day off. So there was no pressure to get up early and go to school. And I knew it. So I said, okay, I don't need to get up early morning. So fine, I can just stay up.
Number. I am reading a good book, very good book at the moment. 6. I read in bed every night. 3. 7. What do you think of her latest book? What do you think of her latest book? What do you think of her latest? क्या राय है आपकी? What do you think of my hair? क्या राय है आपकी? Okay, understand? What do you think of me? क्या राय है आपकी मेरे बारे में? Okay? What do you think of Inaya? What do you think of Inaya? Means what's your opinion? What do you think of somebody? What do you think of her latest book? क्या राय है आपकी? What do you think? What do you think of Rishabh? He is a very logical person. You know, the school class was off because sir did not message in the group. He is a very logical person. You look worried. You look, what are you thinking about? You look worried. Tension में लग रहे दोस्त. You look, you look worried. What are you thinking about? क्या सोच रहे हो? What are you thinking about? Number 9. Vegetarians don't eat meat. 10. I'm not eating dinner with my wife this evening, or I am eating dinner with my wife this evening. Depends. झगड़ा हुआ है तो I'm not eating dinner with my wife this evening. आज रात हम लोग साथ में डिनर नहीं करेंगे. Okay, fine. I'm going to teach you another use of the present continuous. एक और use सिखाएंगे present continuous का, लेकिन अभी नहीं. Wait. Okay, next page will be your homework. Page number 63. And I'm putting this in the group for you. Let's talk about the main book now. Something, nothing, everything, anything. Let's understand. Picture number 1. What do you see? He's doing something on the computer. He is. सदाकर इसकी हिंदी करेगा, ठीक है? He is doing something on the computer. देखो बेटा, पिक्चर देखो. He is doing something on the computer. बताओ इसकी हिंदी बताओ. सेंटेंस नंबर 1. होमवर्क क्या है बेटा? दिखाओ बुक. झूठे, झूठ बोले कौआ काटे नहीं सुनाएगा. हाँ, झूठ बोले मास्टर मारे, ये सुना है? He is doing something on the computer. He is doing something on the computer. हिंदी बोल भाई. He is doing something on the computer. तो जरा के साथ आया था ना क्लास में. जरा बेटा बता दे इसको हिंदी. He is doing something on the computer. He is doing something on the computer. इसका हिंदी बता दो बेटा. हाँ, वो कंप्यूटर पर कुछ कर रहा है बेटा. ऐसे हिंदी मत बोलना जो बोलचाल वाली नहीं, बोलचाल वाली बोलना. कंप्यूटर पे कुछ कर रहा है. Alright, he is doing something on the computer. ये किस क्लास में है? एक, हाँ नहीं, सदाकत से बात करो. ये किस क्लास में है सदाकत? नहीं पता, सच में नहीं पता. यू नेवर. हाँ पक्का जानता है, मुझे नहीं पता क्या वो जानता है. कितने साल की है बोल मत, मुझे नहीं पता. तू 14 है. 14 है. हैं? तू भाई कितने साल का है? हाँ, ये 12-13 साल की है. ठीक है, पास में आया. अब मुझे ये बता कि भाई साथ में आए तुम दोनों, कि तुमसे छोटी भी है, लड़की जात है, तुम तो लड़का जात हो, ऊंचे हो, राइट?
फिर ऐसा कैसे हुआ कि इसको पता है तुमको नहीं पता? इसके पीछे की वजह क्या है? हाँ। और ये पहले से पढ़ते आई है, इसके पापा मम्मी का पैसा फालतू है जो यहाँ भेजा इसको। ये जो आई थी तो इतना भी नहीं जानती थी जितना तू जानता था। ठीक है, मेहनत कर रही है। सच मान। कितना अच्छे से बोल रहा है, पढ़े नहीं कभी। तू अब नहीं पढ़ रहा, ये बोल बेटा। आलसी। ही इज अ लेजी पर्सन, दैट्स ऑल। ही डजंट हैव इंटरेस्ट इन इंग्लिश। घर जाएगा, लड़कों के साथ खड़े होकर लड़कियां देखेगा, बातें करेगा, यही सब करेगा। या दैट्स व्हाट यू डू। यू डोंट सिट डाउन विद अ बुक। कल कल आए थे ना तुम क्लास में, ये होमवर्क था, कल 5 मिनट पलट कर देखे होते ना उस पेज को कि देखो क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, तो तुम बेहतर हो जाते हैं। तुमने किताब खोला नहीं होगा कल, यहाँ से जाकर कैसे किताब फेंका होगा, उसका लेना देना नहीं होगा, फिर उठा के लेके आए होगे तुम। आई नो दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव। ओके, मुझे पता चलता है यहाँ पे। दिस इज द रीजन व्हाई यू आर नॉट इम्प्रूविंग। हम तुम्हारे बदले पढ़ नहीं सकते बेटा। हम तुम्हें 15 मिनट आज अकेले दिए, सबको छोड़ करके। कोई स्कूल नहीं देगा, और देता तो तुम ऐसे रहते भी नहीं, ये भी बात सच है। लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है कि तुम खुद से कोशिश करो करने की कोई चीज। when we are talking at our new school, उसमें कुछ 7th 8th में बच्चे हैं ना, वो मुझे इसकी याद देते हैं, फीलिंग्स देते हैं 7th 8th में। लेकिन फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो भी 7th 8th में बहुत छोटे हैं अभी भी। जब 3 4 मंथ से कोई टेंशन ही नहीं है भाई। कितने भी बिगड़ैल है तो क्या होगा? तीसरे चौथे में कितने बड़े होते हैं? 10 11 12। लेकिन जो 15 16 हो जाते हैं ना, उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। नाउ दे डोंट थिंक ऑफ यू कि आप उनको प्यार करते हैं, ये वर्ड खत्म हो जाता है। जैसे मैं किसी 11 12 साल के बच्चे को ऐसे करूंगा ना, तो उसको लगेगा सर मेरे को प्यार करते हैं, ठीक है। इनके दिमाग से वो फीलिंग कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है प्यार वाला। इनको फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए प्यार मतलब वो फिल्मों वाले प्यार खाली रह जाता है, ठीक है। टीचर और स्टूडेंट का प्यार नहीं रहता, ठीक है। इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे से बोलूं खराब से बोलूं, कोई मतलब नहीं है, मतलब ही नहीं है इनको। मैंने जारा को अच्छे से बोल दिया ना, खुश हो जाएगी, सर बहुत अच्छे से बात की है। अजान को अच्छे से बोलूंगा, खुश हो जाएगा, क्योंकि अभी उस एज में है जहां पे इस बात का मर्म समझते हैं वो। और हम इसी फीलिंग के साथ बच्चे को पढ़ाते हैं। डांट डपट के थोड़ी आगे आप ले जा सकते हैं उनको। आप उनको एहसास कराते हैं कि जैसे आपके घर पे पापा मम्मी है ना आपके लिए, वैसे यहाँ हम हैं आपके लिए। आपकी गलतियां कोई बड़ी बात नहीं, हम सुधारेंगे उसको। लेकिन जब आपकी ये फीलिंग खत्म हो जाए, होता है 7th 8th में आने के बाद ना, जो 15 16 के होते हैं ना, दे बिकम इंडिविजुअल्स। दे स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू कि आप उनको प्यार करते हैं। वो मान ही नहीं सकते इस बात को। उनको हमेशा लगेगा आप उनको बस डांटते हैं, आप उनको परवाह नहीं करते। उनकी फीलिंग आ जाती है। अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी समझ होगी, समझ, तो सोचना कि 15 मिनट सर ने मेरे को क्यों दिया। क्लास के बीच में इतने सारे बच्चे थे पढ़ने वाले बैठे हुए, मेरे से क्यों फेस टू फेस हो गए और मेरे को क्यों पूछा? तो इसका जवाब मैं बताता हूँ। सारे चंट लड़के कहेंगे मेरी बेइज्जती करी क्लास में बैठा करके। क्या देखेंगे वो? मेरी बेइज्जती करी 15 मिनट बैठा के। उनको नहीं लगा 15 मिनट मेरे को दिया, अपना 15 मिनट मेरे को दिया, सबको छोड़ के समझाने की कोशिश की कि देखो इसमें ये था, ऐसे था, कि ताकि मैं बेहतर हो सकूं। अगर ऐसे देखेंगे इस चीज को, क्योंकि छोटे बच्चे देखते हैं, अगर आप उनको एक्स्ट्रा टाइम दोगे ना, दे विल अप्रिशिएट इट। ग्रोन अप लोग, उनको लगता है कि मेरे को मत देखो, मैं हूं नहीं क्लास में, ऐसा मानो, मेरी तब आंख मत करो, उनको ऐसा लगता है। तो अभी भी बदल जाओ, मैं तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी दूंगा सीखने का। कोशिश करो घर जाके। ही इज डूइंग समथिंग ऑन द कंप्यूटर। ही इज डूइंग समथिंग ऑन द कंप्यूटर। टू, ही इजंट वेयरिंग एनीथिंग। ही इजंट वेयरिंग, हिंदी, वो कुछ नहीं पहने हुए है। ही इजंट वेयरिंग। बोलो सर आप तो व्हाइट टी शर्ट पहने हुए हैं। सर यू आर वेयरिंग। यहाँ कंफ्यूजन है। कई टीचर्स और स्टूडेंट सोचते हो पहन रहा है होना चाहिए, नहीं नहीं, पहने हुए है। मैं शॉर्ट्स पहने हुए हूं आज, ठीक है। टुडे आई एम वेयरिंग शॉर्ट्स। आई एम वेयरिंग शॉर्ट्स। पहन रहे हैं नहीं, पहने हुए हैं। मुदस्सिर इज वेयरिंग ए स्काई ब्लू पुल ओवर। स्काई ब्लू पुल ओवर, ऑलराइट। जारा इज वेयरिंग अ ब्लैक कुर्ती। शी इज वेयरिंग, वो पहने हुए है, राइट। मुदस्सिर इज वेयरिंग नथिंग।
Oh, sorry, Mudassir is wearing something. He is wearing something. Mudassir, sorry, Mudassir. Oh, Mudassir, no, Husham. I was talking about Husham. Husham, बेचारे को तो embarrass कर दिया मैंने. Okay, Husham is wearing a shirt. Husham is wearing a. Okay, and Rishabh is wearing a cap. Rishabh is wearing a cap. मतलब क्या हो बेटा? कैप पहने हुआ है. हाँ, इसमें पहन रहा है नहीं है, पहने हुए है. Rishabh is wearing a cap. Got it? तो ये वेयर वाले में ध्यान रखना, पहन रहा है नहीं है, पहने हुए है. ठीक है. He is wearing glasses too, and so is Afia and Tabriz. Yeah, Tabriz and Afia are also wearing glasses. Okay. You are not wearing glasses today. Okay. Number 3. She is buying everything. अब देखना, अभी मैंने जो पढ़ाया है ना, इसके पीछे वाले सेंटेंस से, अभी प्रॉब्लम क्या है आप में से कई लोगों की, आप लोग उससे कलर्ड हो जाओगे. आप 3 नंबर में आप गलत कर दोगे. हिंदी करो. शी इज बाइंग एवरीथिंग. हिंदी करो. सब कुछ खरीद रही है. वापस आ जाते हैं जो हम पहले से पढ़ रहे थे. बीच में थोड़ा एक के लिए, वेयर के लिए हम लोगों ने चेंज किया. ठीक है. शी इज बाइंग, सब कुछ खरीदे जा रही है. शी इज बाइंग एवरीथिंग. Number 4. What are you having for breakfast? What are you having for breakfast? Nothing. I'm not hungry. What are you having for breakfast? नाश्ते में क्या खाने वाले हो? Nothing. I'm not hungry. कुछ नहीं खाएंगे. भूख नहीं लगा है. Grammar spot. Can you complete the chart? It was your homework. Some, something, somebody, somewhere. Any, anything, anybody, anywhere. Every, everything, everybody, everywhere. No, nothing, nobody, nowhere. चलो अब दूसरे सीक्वेंस में पढ़ते हैं. Something, anything, everything, nothing. Come on, read. Something, anything, everything, nothing. Somebody, anybody, everybody, nobody. Somewhere, anywhere, everywhere, nowhere. The rules are the same. क्या मतलब? Remember rules about some and any? Some is used in positive sentences and any is used in negative and question sentences. So we will use the same rules with these words as well. The words with some will go in positive. The words with any will go with in negative. Okay, mainly the rules about them. Let's read some sentences. Number 1, I'm hungry. I want something to eat. I'm hungry. I want something to eat. 2, I can't find my phone anywhere. I can't find my phone anywhere. 3, everybody is enjoying the party. Everybody is enjoying the party. 4, oh dear, I don't know anybody. Oh dear, I don't know anybody. Remember that line? Oh dear, I don't know anybody. Don't worry, they're all very nice. 5, the lights are off. The lights are off. Nobody is at home. बत्तियां बुझी हुई हैं. कोई घर पे नहीं है. Nobody is at home. 6, he knows everything. One more time. Number 1, I am lonely. I want somebody to talk to. I am lonely. I want somebody to talk to. मुझे कोई चाहिए जिससे मैं English. Sam is bored living alone. She wants somebody to marry. She is bored living alone.
living as a single girl. She wants somebody to marry. Okay. You already have one. Okay. Good for you. Good for you, Sam. आजकल लोग पहले से फिक्स कर देते हैं। हाँ, जैसे होता है डिपॉजिट डाल देते हैं, बढ़ता रहता है। वैसे ही चल, हाँ, चल चल चल, 26 को आएगा, कर लेंगे। बढ़िया। नंबर 2, आई कांट फाइंड माई फोन एनीवेयर। मुझे कहीं शांति नहीं मिलती। आई कांट फाइंड पीस एनीवेयर, राइट। हस्बैंड का यही सिचुएशन है, दे कांट फाइंड पीस एनीवेयर। 3, everybody is enjoying the party, right? Everybody wants to be happy. Everybody wants to be happy, right? Oh, huh? They can't. ये तो सेंटेंस सही नहीं है। They can't happy नहीं बोल सकते तुम। The don't happy भी नहीं बोल सकते। उसकी वजह बताता हूँ। Can't और don't के बाद क्या आता है इंग्लिश में? बी वन। हैप्पी क्या है? तो ये तो हो ही नहीं सकता। बेसिक प्रॉब्लम है ना बच्चे? जब तुम बचपन में इंग्लिश नहीं सीखोगे तो ऐसे सेंटेंसेस मुंह से निकल जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड इनफ। अभी तक उसने ट्रेनिंग नहीं मिली है जितनी मुंह से। इसके मुंह से ऐसा सेंटेंस निकलेगा ही नहीं, निकलेगा ना उसके मुंह से। बहुत ही नई बातें बोलेंगी, ये नहीं बोलेंगी। ये फर्क होता है बचपन में लैंग्वेज सीख लेने का और बड़े होने के बाद भी। ये नहीं निकाल पाएंगे ये सेंटेंसेस। दे कांट हैप्पी नहीं निकलेगा, ये चुप रह जाएंगे बच्चे जो है ना, ये दोनों, ये चुप रह जाएंगे, बोलेंगे नहीं। लेकिन ये सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे, दे कांट हैप्पी मुंह से नहीं निकलेगा। दे आंट हैप्पी निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको वहां पर समझना होगा जो आप बोलना चाह रही हैं कांट के साथ, वो बोलना होगा कांट बी हैप्पी। बोलेंगे ये कहाँ से है? वैसे ही आप हैप्पी को कैसे भी बोलते हो सेंटेंस में, कौन से वर्ब से बोलते हो? हैप्पी जब भी बोलना है, आई और हैप्पी बोलना है, कैसे बोलोगे? आई एम हैप्पी। कौन वर्ब है वो? चाहिए तुम्हें V1 फॉर्म में। दे कांट बी हैप्पी, वही है बी वहां, यही एम है वहां पे अपने ओरिजिनल फॉर्म में। क्योंकि कांट के बाद कौन सा फॉर्म यूज होता है? तुम खुश नहीं हो पाओगे कभी। यू कांट बी हैप्पी, यू विल नॉट बी हैप्पी। क्योंकि हैप्पी कैसे बोल पाओगे तुम किसी भी सब्जेक्ट के साथ, बी वर्ब के साथ, कोई भी एडजेक्टिव। आफिया इज ब्यूटीफुल, ठीक है, कैसे बोला हमने? बी वर्ब से। तो अगर मैं बोलूं तुम खूबसूरत हो जाओगे, यू विल बी ब्यूटीफुल, ऑलराइट, ठीक है, यू विल बी सक्सेसफुल। ये बी इसीलिए आता है क्योंकि था, तुम्हें बस दिख नहीं रहा था बी फॉर्म में। इज एम आर का मेन फॉर्म बी होता है, मेन वर्ब, वहीं से वो बना है इज एम आर। वो वापस अपने फॉर्म में आ जाता है कांट के बाद। समझ में आ गई बात? 5, the lights are off, nobody is at home. All the food is in the fridge, nobody has eaten anything. All the food is in the fridge, nobody has eaten anything. Sir is speaking alone, nobody is responding. Nobody is responding. ये आसान है ना? मैं इस पे रूल्स नहीं पढ़ाना चाहूंगा क्योंकि वो कंफ्यूज करेगा आपको। ओके, जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट ऑफ इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, यू गाइस विल गेट इट राइट, डोंट वरी। खाली इतना ध्यान रखना, somebody is crying कि somebody are crying, क्या बोलना चाहोगे? ये ध्यान दे दो। somebody is crying, यही है, somebody is crying, कोई रो रहा है। somebody is crying, somebody is laughing। ओके, अभी somebody की जगह बोलते हैं nobody, कोई नहीं रो रहा। कैसे बोलेंगे? nobody is crying, nobody is crying। फिर से is रहा बेटा, nobody is मतलब समझ में आ रहा है ना?
यहाँ पर हमें इज रखना है। अगर हम बी वर्ब की जगह बोले मुझे कोई प्यार नहीं करता, कैसे बोले? नोबडी लव मी कि नोबडी लव्स मी? इज बोला था ना, इसका मतलब लव्स बोलना पड़ेगा। आप इज बोलते हो ना ही के साथ, तो फिर लव्स बोलते हो कि लव बोलते हो? ही लव्स कि ही लव? उसी तरीके से कंपेयर करना। नोबडी लव्स मी। Besides teaching, we have to take care of so many other things as teachers at school. Couple of days ago, a mother came. She has two sons. So she complained that the first son says that she doesn't love him enough and she loves the younger one more. And she's very unhappy about it. And she wants our help. Said, please do something about it. Without letting him know that I asked you for help. Do something. We will. I know this feeling because I was that child who felt this way in my childhood, that my mother didn't love me, and it was a very bad feeling. So I'm very happy that the mother appreciates it, that the child is unhappy about it. She wants to do something. So yeah, okay. Think about the trust parents have. Huh? They want our help with issues like this. Where we were talking about nobody. Nobody is, हर कोई, सब कोई रो रहा है. Everybody is crying again. Got it? कोई 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 रो रहा है क्या? Is anybody crying? फिर से यानी सबके साथ आपको कौन सा वर्ब यूज करना है, देख रहे हो ना? एनी प्रॉब्लम? नहीं, बीवर नहीं. किसने बोल दिया बीवर? गलत जवाब. कौन था ये? ऋषुआ था. ऋषुआ का तो खैर लॉजिक अलग ही है. हाँ बेटा, अगर बोला ना कि सब लोग नाचना जानते हैं, तो उसमें बी वर्ब लगा देना बेटा, ठीक है? एवरीबॉडी इज कैन डांस. ओके, ठीक है? क्योंकि सर ने पढ़ाया बी वर्ब लगाना है ना? क्या बोलोगे? एवरीबॉडी इज कैन डांस. सही है? क्या बोलोगे? सब लोग नाचना जानते हैं, कैसे बोलेगा? फेंक देंगे, जल्दी बोल, नहीं तो फेंक देंगे क्लास से बाहर, छत से नीचे फेंक देंगे. हाँ. हाँ. अरे कैन से बोल देता. अरे लल्लू लाल, लल्लू लाल टू. एवरीबॉडी कैन डांस. लल्लू लाल टू. Yeah, everybody can dance. Everybody can dance. सब लोग जानते हैं डांस करना, सब लोग डांस कर सकते हैं. Everybody can dance. Okay. Not everybody can dance. Not everybody can dance. ये अलग तरह के सेंटेंस का मतलब हो गया, सब लोग तो नहीं कर सकते. Not everybody can dance. ठीक. तो ये पॉइंट नहीं था कि बी वर्ब लगाना है हर जगह, ये बताना था कि सिंगुलर समझना है इनको, है ना? इनको क्या समझना है वर्ब के मामले में? हाँ, तो अगर बोलना है कोई 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 somebody wants you कि somebody want you? गाने में था ना, somebody wants you, somebody loves you, right? somebody needs you. ओके, यही तो पॉइंट, गौर करके ध्यान दीजिए. बी वर्ब लगाना है हर जगह. प्रैक्टिस सेक्शन. एवरीथिंग वाज टू एक्सपेंसिव. एवरीथिंग वाज जरूरत से ज्यादा महंगा कि खरीद ना पाए. टू, everything was too expensive. We got the comparison. अभी कंपैरिजन हुआ हमारे फी का, कुछ स्कूल के बच्चे मिले, गार्डियंस मिले. तो वी फिगर्ड आउट कि जो लोग 40,000 खर्च कर रहे हैं, हमारे स्कूल में कितना खर्च कर रहे हैं? 14,000. जो अभी कर रहे हैं कितना खर्च? 40,000. वो हमारे स्कूल में कितना होगा उनका खर्च? 14,000. कुछ पेरेंट्स इतने शॉक थे, गली में मिले हमें कैंपेन में, और वो कह रहे हैं आर यू श्योर? जी. तो फिर वो नेगेटिव नेगेटिव बातें, ऐसे है वैसे है. मैंने कहा चलिए. तो फिर उसी समय करीब
आधा किलोमीटर दूर थे स्कूल से, वो साथ हमारे स्कूल आए जानने के लिए ऐसा कैसे। एंड देन वी शोड देम अराउंड, वी टोल्ड देम एवरीथिंग। दो बच्चे, दोनों के दो दो बच्चे, दोनों अलग अलग लोग थे, ऐसे गली में मिले। ओके, वी वर डूइंग कैंपेनिंग। उनको आश्चर्य हुआ, कैसा कैसे हो सकता है, दे वर जस्ट पेइंग सो मच मनी। कहा आइए जस्ट टेक अ लुक। आप लोग सुन रहे होंगे प्राइवेट स्कूल की फी बहुत ज्यादा हो गई, प्राइवेट स्कूल की फी बहुत ज्यादा हो गई। इन लोगों ने एसोसिएशन बना के सब करा है, सब भी फी बढ़ाएंगे। हम लोग घर से तो नहीं खर्च करेंगे, हम लोग घर से खर्च करेंगे क्या, हम लोग भी तो कमाएंगे। बात समझ में आ रही है, इतने में ही बस वो कहते हैं ना, वो लालच आ गई बहुत ज्यादा, और कुछ नहीं। सो यू हैव डन दिस पेज, these conversation, 3 conversations. Let's do it. A and B are talking. Hey, did you buy anything at the shops? कुछ खरीदे कि नहीं दुकानों में? Did you buy anything at the shops? हम लोग बाजार में बोलते हैं, कुछ खरीदे जी, बाजार गया था तो कुछ खरीदे। Did you buy anything? बाजार गए थे, कुछ खरीदे हो, कैसी आ गए हो? Did you buy anything at the shops? क्या ये at the shops एक बार आया या बार बार पहले भी आ चुका है? कोई बता सकते हो कहाँ आया था? हाँ, कैम्पटन मार्केट, एट द शॉप्स। क्या लगता है? हम्म। एट द शॉप्स फ्रेज, एट द शॉप्स हम लोग पहले भी सुने थे, मैं याद कराता हूँ। वी रेड अबाउट ए फादर एंड अ डॉटर, डू यू रिमेम्बर? व्हाट वाज देयर स्टोरी? द फादर वाज ए, and the daughter was a violinist. Remember that story? And the father, when he was small, he saw a Jaguar car at the shops. Remember that phrase? He saw a Jaguar car at the shops. Did you buy anything at the shops? No, nothing. Why not? Everything was too expensive. What a pity. When will you say this line? जब कोई फर्स्ट आ जाए एग्जाम में तो बोलेंगे what a pity. Right. To show sympathy. We use what a pity to show sympathy. Something bad happened with somebody और आप उनके लिए बुरा फील कर रहे हैं, you will say what a pity. How will you say this? What a pity. Means you are feeling bad for them, right? जैसे रानी की शादी तय हो गई है, what a pity. Congratulations बोलना था, right? She's getting married in 2025 September ना. You told me. She messaged me, sir अब हम ज्यादा दिन नहीं पढ़ेंगे, शादी तय हो गई। Come on, तुम तो मजाक कर रही थी मेरे से, अभी 1 अप्रैल नहीं आया। हाँ? What a pity. When do we say this? To show sympathy. Sympathy मतलब when something bad happens with somebody, but we feel नहीं होना था, it was bad, then we show sympathy. ऐसे कैसे होते हैं, कैसे कहते हैं? विचार. This is sympathy, right? So in English we can use the phrase what a pity. Okay. अरे यार, 2 मिनट से छूट गया ट्रेन में यार। 2 मिनट से छूट गया मेरा ट्रेन, पहुंचे थे 2 मिनट पहले निकल गई। व्हाट अ पीटी। बस यही था और क्या। अगर आप बोला ठीक हुआ और देर करो तो वहां पर व्हाट अ पीटी बोल पाओगे, बिकॉज सिंपैथी आई नहीं रही आपकी, आप तो कह रहे हो ठीक हुआ और लेट से जाओ तुम, तो यू आर नॉट शोइंग सिंपैथी, तो यू विल नॉट यूज व्हाट अ पीटी। लेकिन सर ऐसा तो ये आप सिंपैथी शो कर रहे ना, यूज व्हाट अ पिटी। अनदर फ्रेज, व्हाट अ पिटी की जगह बोल सकते हैं व्हाट अ शेम। क्या बोल सकते हैं? व्हाट अ शेम।
और शेम बोलने से ये मत सोचने लग जाना कि हम शर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है? व्हाट अ पिटी, व्हाट अ शेम, दे आर यूज्ड टू शो सिंपैथी। सिंपैथी नहीं बोलते, सिंपैथी नहीं है, सिंपैथी है। हाँ हाँ, देखो क्या होता है, बच्चे सोए हुए हैं, ये हमेशा बचपन से क्या बोलते आए हैं? जस्ट अ सेकंड। हम्म what was I talking about? I was just telling you. Yeah, sympathy, the pronunciation is sympathy. Yeah, आदत पड़ी हुई ना क्या? sympathy, because PATHY, अच्छा CATHY क्या थी, तो PATHY पैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, sympathy. I have big expectations from my every time you guys say these things, I only think यार तुम तो जो आ गए, उनको तो चेंज करने में टाइम लगेगा, I understand. Okay, but young kids, they will hear only correct pronunciation from me. All right, they will not. Acha, imagine Inaya. Inaya lives here. Okay, then she will never be exposed to the bad pronunciation, right? Because कितना ही अभी तक एक्सपोजर मिला है? She is only 7, right? She is only 10. तो एक्सपोजर ही कितना मिला है? लिमिटेड है ना? हाँ. Okay, you are 8. Okay, now you're 8. All right. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. I didn't mean to show you are much younger. You are 8. I understand. And you are grown up now because you're 8. So the point was that these children, if they keep listening to the correct pronunciation, will they ever pronounce things wrongly? No. Just before I came up to the class, I was watching a video with my daughter on YouTube, and a teacher, online teacher of UPSC, he was talking about how Mahakumbh, Prayagraj is dirty. The water is not fit for a bath. People are going there to have a bath, but the water is contaminated. वहां एक वर्ड आया, FAECAL, FAECAL, ओके? ये वर्ड बनता है फीसिस से। फीसिस मतलब मलमूत्र, शरीर से जो निकलता है ना, उसको फीसिस कहते हैं, ओके? पढ़ाई लिखाई की लैंग्वेज, ऐसे तो शिट बोल देते हैं, ठीक है? तो उससे रिलेटेड, यानी कि अगर थीसिस से रिलेटेड, जैसे कोई भी चीज से रिलेटेड होता है तो एडजेक्टिव बनता है बेटा। जैसे इंडिया से इंडियन बना, कि इंडिया से रिलेटेड कोई चीज होगा तो क्या कहलाएगा? राइट, तो एडजेक्टिव बनता है नाउन से। तो सन से सनी बना ना, सो सोलर, लूनर, ये सब वर्ड्स बने ना एडजेक्टिव्स। तो वैसे ही फीकल होना चाहिए वो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन। वो पढ़ रहे थे सर फीसल, क्या पढ़ रहे थे? तो माय डॉटर सेड, पापा इज इट फीसल? इट शुड बी फीकल, इजंट इट? आई सेड यस। तो द थिंग इज, अगर हम अपने आप को करेक्ट एक्सपोजर देते हैं, वो सर हैं यूपीएससी की पढ़ाई कराते हैं, वो क्या पढ़ दिए उसको? फीसल। उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए था? फीकल। ऑलराइट। तो माय डॉटर इज 15, आई एम नॉट a UPSC teacher for UPSC students, but because we have had the right exposure, so we know sometimes हमसे भी गलतियां होंगी, वो अलग बात है, लेकिन लिमिट उसकी ये क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कम है। तो अभी आप जो सिंपैथी कर रहे हैं, ये आप जुआ गए हो सुनते सुनते, होम्योपैथी और एलोपैथी और सिंपैथी। अब आपको कितना भी करेक्ट करे, बहुत मेहनत लगेगा आपके तरफ से। मैंने एक बार बोला, कोई फर्क पड़ा आपको ज्यादा? आप कल फिर से बोलोगे सिंपैथी। बट व्हेन स्मॉल किड्स आर विद मी, और वो सुनेंगे मेरे मुंह से क्या, सिंपैथी सिंपैथी सिंपैथी, तो वो कॉपी करेंगे सिंपैथी। उनके दिमाग में पैथी जाएगा ही नहीं, तो हटाने की बात ही कहाँ आएगी?
दैट्स द बेस्ट थिंग। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, मैंने अभी बताया था कि आई हैव बिग एक्सपेक्टेशंस। 2-2.5 साल अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ाऊं स्कूल में, तो उसके सबसे पहली चीज जो अलग दिखेगी वो है उसका प्रोनाउंसिएशन। इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम एवरीबॉडी एल्स। अच्छा, ये बोलते हुए मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट लगता है, क्योंकि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। आपको बिहार शरीफ में टीचर्स नहीं मिलेंगे जिनकी प्रोनाउंसिएशन मेरे जैसी होगी। एक लाइन में बात कर, मतलब जो भी टीचर्स हैं, चाहे इस स्कूल के, उस स्कूल के, इस कॉलेज के, उस कॉलेज के, डजेंट मैटर, majority of them will have to learn. I will correct their pronunciation. Ha, I'm sure कि sometimes I will be wrong too. Okay, that's another thing. But they will be corrected every now and then. I will be correcting them every now and then because मैंने इसी पे तो काम करा अपने। मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए थी, बेहतर इंग्लिश अपने लिए, बाकी सब तो बाद में होना था। I never learned English to teach you guys, okay? Trust me. That was never my aim. I learn English so that I can teach. Yeah, I didn't want to be embarrassed in the class by making mistakes. That's another thing that I guess every teacher feels that way. Nobody wants to make mistakes in the class. As a teacher, whether you're a math teacher or English teacher, you don't want to make mistakes. You don't want to, but you end up sometimes making mistakes because you're human and your knowledge is limited. So sometimes you make mistakes. It's okay. But your aim should be to improve so that you don't make mistakes. But if you say to yourself, oh, it's all right, I'm a human and I don't work, that's a negative attitude. Your aim should be to keep getting better and better, right? So yeah, that's why I said कि थोड़ा बोलने में अजीब लग रहा है कि अपने आप को बेहतर बता रहे बाकी से, लेकिन ये रियलिटी है। और ये रियलिटी कैसे सामने से आएगी? When I spend time with children. If you talk to my daughter Aditi, you will realize that she doesn't make mistakes of pronunciation like Bihashi people do. She doesn't. No way. I told you just before I came up today, this conversation happened. I can show you which video we were watching. And he's saying Peaceful there. It is Study Glows ka video hai. Kiska? Study Glows ka. Okay, Study Glows is a channel and it basically brings videos for UPSC students. तो वो फीसल पढ़ रहे हैं सर उस पे, और उसने मुझे कहा सर इट्स नॉट फीसल, इट्स फीकल, इजंट इट? यस इट इज फीकल। तो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट कि हम लोग एक्सपोजर, हमें सही, हमने जाना था कि प्रोनाउंसिएशन बुरा क्यों है हमारा। सब बोलते रहते हैं बुरा प्रोनाउंसिएशन कैसे सही करे, कैसे क्या सही करे? खाओगे पियोगे कुछ थोड़ी स्पेशल उसके लिए कि कोचिंग ज्वाइन करोगे? नहीं, कुछ नहीं करना है। यू जस्ट चेंज योर इनपुट। आप सिंपैथी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आपको किसी ने बताया नहीं क्या बोलना है। सिंपैथी, यू हैव ऑलवेज हर्ड अदर पीपल से सिंपैथी, तो आपने सिंपैथी बोल दिया। सिंपैथी, व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी। तो थोड़ा सा अपने आप को अच्छा बोलने में ना थोड़ा सा झिझक लगता है कि लोग मिसअंडरस्टैंड कर जाएंगे कि अरे ये आदमी अपने बारे में बहुत अच्छा अच्छा रखता है। इट इज जस्ट अ रियलिटी, इट्स जस्ट अ फैक्ट। यू विल नॉट फाइंड टीचर्स in any private school here, in any college here, who will tell you, who will have the same pronunciation as me. Most, I mean, as far as I have met quite a few people, okay, on that basis. If somebody new has come up from somewhere outside, then again, they will have better pronunciation. But people from this area, because again, आप सीखते कैसे हैं? सुन के। और आपने सुना किसको? यहाँ के लोगों को। Pronunciation is bad automatically. So what a pity. But I bought something for you. But I bought happy birthday. Did you understand the whole conversation? What do you think about A? What do you think about B? How old is A? How old is B? Think about it. Conversation number one. Let's practice conversation number one. People, practice conversation number one with each other.
Rishabh Babu, Aman Babu, come give Sadakat company. Aman Babu, come give Sadakat company. You come here, give some company. Yeah. Done. Only the first conversation. Now, what did you realize from the conversation? Don't you think this conversation is between a little kid and a grown-up? नहीं, नहीं हुआ एहसास। मेरे को लगता है ऐसा कि why would this person inquire कि कुछ खरीदे, कुछ खरीदे। उसको लग रहा था कि मेरे लिए अंकल कुछ लेके आएंगे या आंटी कुछ लेके आएंगे, ठीक है। उसने कहा, Did you buy anything at the shops? तो सामने वाला थोड़ा सा मजाक किया, वो करते ना बड़े लोग। No, nothing. Why not? Everything was too expensive. Oh, what a pity. अफसोस भी हो रहा है इसको, क्या कुछ नहीं है। लेकिन इसने कहा, but I bought something for you. Happy birthday. हो गया ना? पीछे समझ आया कैसा चला होगा? ये चीज एहसास कर रहे थे आप प्रैक्टिस करते समय, या नहीं हो रहा था? कहानी क्या हो रही है? कब करोगे कहानी, कब एहसास करोगे? आप खाली इंग्लिश पढ़ते हो, आप कुछ नहीं सोचते, इंसानी फितरत फ्लो कुछ नहीं सोचते। देखो कैसा चल रहा है, मेरे ख्याल से ऐसे ही है। देखो, एक बच्चे ने पूछा, तो अंकल कुछ खरीदे आप, कुछ मिल बाजार में? नहीं बेटा, कहाँ कुछ खरीदे। कहा है अंकल, पर ये बहुत महंगा था सर। हाँ, अच्छा, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, लो हैप्पी बर्थडे। तो खुश रहेगा वो। पहले उसको बता दिया कुछ नहीं लेके आया, तो ही इज लाइक, he likes surprising sometimes young kids. I do this a lot. I say something that will make them a little unhappy, and then I surprise them so that they feel happier. So that is the attitude here, I guess. Let's see. Number 2. Did you talk to anybody interesting at the party? Question. So anybody? Did you talk to anybody interesting at the party? No, nobody. Why not? Everybody was dancing and the music was really loud. Oh, but I danced with somebody beautiful, a girl called Kate. Maybe 2 cousins are talking. Husband, wife? Nah, no way. I don't think so. If it is a conversation between a husband and wife, the wife is very friendly, I would say. Very friendly, very open-minded. Because the husband says, but I danced with somebody beautiful, a girl called Kate. I think it's a conversation between 2 cousins, maybe, or a brother, sister. Okay. ये सब नहीं सोचते ना, ये बात मुझे अखरती है आपकी। ये कैसे हो, ये बात कौन करेगा, ये बात कौन करेगा, ये सब सोचते नहीं आप। मानते कि आपकी कमी है, कि आपको सोचना चाहिए। असली में अगर महसूस करना है कॉन्वर्सेशन को, तो ये समझना चाहिए कि नहीं। नंबर 3, डिड यू गो anywhere on Saturday night? No, nowhere. Why not? Everywhere was closed. There wasn't one club open. एक club नहीं खुला हुआ था. There wasn't one club open. That's incredible. Aisa, incredible means hard to believe. That's incredible. एक club नहीं खुला हुआ था Saturday night को. Wow. So next weekend, I'm going somewhere more interesting. Shall I play the audio? And then you guys will practice. It's nearly 5 actually. 10.7. Tape script 10.7. Everything was too expensive. 1. Did you buy anything at the shops? No, nothing. Why not? Everything was too expensive. What a pity. But I bought something for you. Happy birthday. Oh. Okay. 2.
Did you talk to anybody interesting at the party? No, nobody. Why not? Everybody was dancing, and the music was really loud. Oh. But I danced with somebody beautiful, a girl called Kate. Hmm. 3. Did you go anywhere on Saturday night? No, nowhere. Why not? Everywhere was closed. There wasn't one club open. That's incredible. So next weekend I'm going somewhere more interesting. Oh. All right. So wanna practice? Okay, I'm putting this conversation in the group as well for you. Go ahead, guys, practice a little. Practice the conversation. All the 3 conversations. Going to somewhere, going somewhere. I'm going somewhere. I'm going somewhere. More in. Okay, beta. Good.
Done? I have already shared the homework for tomorrow. 1 page, more practice to understand the difference between the present simple and the present continuous.